students, how are you all? So, welcome again in Maximus. So, it is a digital learning platform to provide you quality education. So, here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best education. So, this is not going to clear all your concepts, but also going to make you learn very fast, right? So, in today's session, we already learned so many things in our class, right? But in today's session, we are going to start the topic which is widely used in class 11th and class 12th. Actually in every topics, this is going to be part, right? So this is one of the most widely used function across study across your further study of mathematics, correct? And today's topic we are going to learn about it's something blank. Okay, so we are going to start from a blank, correct? So what is a blank? Blank is a very used thing, correct? Like zero was invented, and after zero there are so many mathematical research, so many things have been invented, right? तो blank भी बहुत बड़ी चीज है, and we are going to learn from a blank, correct? अभी कुछ दिन पहले की बात है ना, I was just kidding with my kid was just kidding with me, ठीक है? तो इसने just ऐसे ही पूछा कि पापा what is the sum of 2 plus 2, right? So the sum of 2 plus 2 we already know this is something like 4, ठीक है? Then he again asked what if we add 2 4 times? So I added 2 by 4 times, right? So I told this is going to be 8, correct? Then again he told अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं 2 को 8 times अगर मैं ऐड करूँ तो क्या होगा, right? So शायद then again I added 2 8 times, right? So if you add 2 8 times, this is going to be 16, ठीक है? So this is something like that, you know, he asked so many questions, like he told me what if we'll add 3 2 times, 3 times. Then I told him if we'll add 3 times, this is going to be 9. Then again he asked what if we'll add 3 9 times, so what is going to happen? So if we'll add 3 9 times, this is going to be 27, right? Then again I told him कि अगर if we are going to add 2 times, this is the 4, and 4 can also be written as a 2 to the power 2, right? Then again I told him 8 can also be written as a 2 to the power, sorry, so this can again be written as a 2 to the power 3, correct? And 16 again can be written as a 2 to the power 4. So he again asked, what is the power and what is the use of this power, right? So here this 3 can be written as a power 2, and this 27 can be written as a 3 to the power 3. So what is, he again asked the question, so what is if we are writing 3 to the power 3, so what is power 3? So power, I told him कि power का एक सम के काइंड ऑफ चीजें होती है ना, कि मैं अगर एक ही टर्म को अगर नंबर ऑफ टाइम्स मैंने अगर ऐड किया है ना, तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स मैंने उस टर्म को अगर उस नंबर को मैंने ऐड किया है तो दैट इज नोन एज अ पावर, ठीक है? तो उसने बोला कि जैसे मेरे 2 नाम है उस तरीके से इसके भी कुछ नाम है क्या? सो यस, आई टोल्ड हिम यस, दिस इज आल्सो नोन एज अ पावर, ठीक है? इसके और भी नाम है, और क्या नाम है? दिस इज आल्सो नोन एज इंडाइसेस, ठीक है? तो उसने बोला और भी कुछ नाम है, तो मैंने बोला हाँ, दिस इज आल्सो नोन एज एक्सपोनेंट, दिस इज आल्सो नोन एज एक्सपोनेंट, ठीक है? तो दिस power is also power is 3 kinds of thing, and three known, this is also known as 3 names है ना? One is power, already widely used name is the power, and second we also use power as a indices, and third we also know power, know power as exponent, ठीक है? So there are 3 names of power, correct? So we all know these names है ना, we all denote power with the power, indices and exponent, है ना? तो 3 kinds of चीजें होती है, ठीक है? and power क्या होती है? तो अभी इसने तो मुझसे क्या पूछ रहा था वो कि 3 मेरे से उसने पूछा है ना। अब क्या हुआ कि उसने सडनली उसने बोला कि पापा ये बताओ कि 3 टू दी पावर में 4 करूँ तो क्या निकल के आएगा? तो मैंने बोला कुछ नहीं, 81 निकल के आएगा, ठीक है? तो उसने बोला कि 5 टू दी पावर अगर मैं 3 करूँ तो कितना होगा? तो मैंने बोल दिया 125 होगा, और क्या होगा? देन ही आस्क्ड क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, अगर मान लो कि 125 पे अगर मैं 125 पावर कर दूं तो ये कितना होगा? देन आई वाज स्टार्ट थिंकिंग ओह व्हाट ही आस्क, है ना? अब तो प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेशन करने में, ठीक है? अब सडनली अगेन आस्क, है ना, अगर मैं मान लो कि 512 पे अगर मैं 1202 में पावर कर दूं, सो व्हाट इज गोइंग टू दिस, ठीक है? तो मैं तो फिर सोच में पड़ गया ना कि ये तो बहुत बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, एंड दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज, राइट? तो अब तो प्रॉब्लम होने लगी है ना। And the problem what I faced, and a similar kind of problem faced by one of the greatest mathematician
of that time in about 1500 and 1600 kind of thing. And the science mathematician was Dr. John Napier, right? And he come with a concept, and when he come with up with a concept, and that concept converted this this kind of power kind of thing, this multiplication kind of things into addition, and a division kind of thing into the subtraction, right? And that process is actually known as logarithmic. Okay, so we are going to learn about logarithmic, the understanding of logarithmic, and how this is actually useful for our life, correct? So actually we are starting logarithmic. Okay, so this actually I already told you है ना, invented by Dr. John Napier in something about 1500 mid of 1550 or something in 1600 kind of thing है ना. So this was invented by John Napier, correct? और इन्होंने जो किया ह्यूज मल्टीप्लिकेशन एंड ह्यूज डिवीजन काइंड ऑफ प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है ना. बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को दे कन्वर्टेड इनटू एडिशन, एंड योर एडिशन इज इजी, राइट? और काइंड ऑफ डिवीजन को उन्होंने सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में कन्वर्ट किया, ठीक है? सो बाय दैट वी आर आल्सो गोइंग टू लर्न दिस ऑल थिंग्स, राइट? सो बिफोर गोइंग टू लर्न अबाउट द logarithmic, we should understand the concept of indices, the power, the concept of power. Once we are revising the concept of power, so this is going to be easy, correct? Let's learn about the concept of indices first. So these are some of the basic rules of indices, है ना? Indices हमने already class 8th class 9th में हमने learn किया, ठीक है? तो similar kind of thing को we are going to similar kind of thing we are going to revise, right? So what are given, the things which are given is this. पहला क्या है, अगर बेस अगर a है ना, a and b are real numbers, we all know this is valid, indices are valid for the positive real number, है ना? तो if a and b are the real numbers, है ना, greater than 0 and not equals to 1, ठीक है? तो अगर a to the power अगर m है and अगर a to the power n है, ठीक है? इसको मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर 2 to the power 4 है into 2 to the power 7 है, तो we all know कि 2 to the power 4 plus 7 we can write, ठीक है? So this is going to 2 to the power 11, ठीक है? हम ऑलरेडी नो, हम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में, and we are not going to discuss, बस we are revising the things, है ना? हम ये भी जानते हैं अगर a to the power अगर minus m हो, so this can be written as a to the power m, 1 upon a to the power m, correct? And again we all know कि अगर a to the power m है और a to the power n है divided by a to the power n है, so this can be written as a to the power m minus n, correct? So this is widely used, already हमने यूज किया क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10th में हमने ऑलरेडी पढ़ाई किया है, ठीक है? बेसिक चीजें हैं, we are just revising the concept of indices, right? हम ये भी जानते हैं अगर a to the power m है और ब्रैकेट में a to the power n है, so this m and n going to be multiplied, so this is going to be m and n, correct? इसके अलावा क्या है, अगर हम जानते हैं किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो, so that is going to be 1, ठीक है? किसी भी नंबर पे अगर पावर अगर 1 हम करते हैं, पावर 0 करते हैं, इंडाइसेस अगर 0 करते हैं, तो दैट इज रिजल्ट इज गोइंग टू बी 1, करेक्ट? एंड अगर इफ a to the power m इक्वल्स टू a to the power n है, तो वी ऑलरेडी नो, हम लोग सबके सब जानते हैं दिस m and m is going to be equal with n, ठीक है? सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट. इसके अलावा क्या है, इफ a to the power n, राइट, a to the power n is equals to b to the power n, ठीक है? देन a इज नॉट इक्वल्स टू, अगर a और b के इक्वल नहीं है तो क्या हो सकता है, n जो है सो 0 होगा. तभी हो सकता है n 0 हो जाए तो बोथ विल बी इक्वल्स टू 1, so both will be equals to 1, ठीक है? So these are the basic concept of indices which we are revising right now, ठीक है? तो होप अगर ये concept of indices अगर आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है. If you are not well versed with this thing, so let's revise this again and again, right? So that concept of logarithmic you are going to learn very fast, correct? So if you are ready with this, let's start the concept of logarithmic, right? तो अगर ये चीज़ अगर क्लियर हो, है ना, just take the screenshot so that this will help, this is going to be helping, है ना? Just we need to, है ना, एक चीज़ ध्यान रखना है ना कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर हमने पावर 0 किया है, that number going to be what? That number going to be 1, ठीक है? करेक्ट है? So this thing is very important, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है? और अगर a अगर लेस देन 0 है,
अगर नेगेटिव नंबर है तो दैट इज नॉट लॉगरिथमिक, लॉग इज नॉट गोइंग टू, लॉग इज नॉट डिफाइंड इन दैट केस, ठीक है। सो दो टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट। वन कि ए जो है सो शुड बी पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि जो पावर है इफ दैट इज अ जीरो, राइट, सो देन दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द concept of logarithmic, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग, यू नो, सो मेनी थिंग्स आर रिटन हियर। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, है ना, कि 25 है ना, 25 अगर मुझे लिखना हो ना, हाउ वी कैन राइट द 25, अगर मुझे 25 को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। सो दिस इज द 25, सो हाउ वी कैन एक्सप्रेस द 25, सो 25 कैन बी एक्सप्रेस इन टू वे, व्हाट, 1 5 को मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, है ना, दूसरा क्या लिख सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, log 2, ठीक है, 25 अगर करता हूँ, है ना, सो दिस 25 कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस एज ए बेस, है ना, log ऑफ बेस 2 25 नंबर 25 इक्वल्स टू x, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, है ना, सो दिस this 25 can also be expressed as a, right, so this can be expressed like this, correct. So basically this can be written as a, right, 5 log of base 5 to the power number 25 equals to 2, ठीक है। So this can be also represented like this, ठीक है। तो मुझे 25 को लिखना हो, so both are, ना, similar kind of thing, this implies both the side, ठीक है। तो both the side this is equal, है ना। 25 मुझे 25 लिखने हो तो 25 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, एक तो 5 स्क्वायर भी कर सकता हूँ, दूसरा 5 log to the 5 base, है ना, नंबर 25, है ना, इक्वल्स टू 2, ठीक है। दिस कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस लाइक दिस, ठीक है। अब देखोगे तो log को मैं इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इफ यू से, सो दिस इज वैलिड फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर, है ना। log जो है सो दो तरीके से, अगर एनी दिस नंबर शुड बी एनी हाउ दिस इफ दिस इज n, ठीक है, इफ दिस इज n, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन एनी हाउ, नॉट इक्वल्स टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन, this should be greater than 0 but should not be 1, ठीक है। why we are going to discuss this thing कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। so this, you know, the numbers can be, first number was represented this is in the form of exponential form, ठीक है। एक नंबर मैंने 25 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, दूसरे नंबर को मैंने कैसे एक्सप्रेस किया, दूसरे नंबर को मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया, ठीक है। सो एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स, ठीक है। पहला एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दूसरा एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, दूसरा लॉगरिथमिक फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिफाइन द लॉगरिथमिक, लॉग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो जस्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक, ठीक है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक, ठीक है। जस्ट हमने अभी लॉग का डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा है, लॉग को एक्सप्रेस करना, लिखना हमने लर्न किया, ठीक है। अब हमें लॉग को डिफाइन करना है, ठीक है। तो लॉग को अगर मैं डिफाइन करूं तो log of this is the log of a to the power base, है ना, log of base a to the x equals to y, ठीक है। so if this is known as log, right, any number, है ना, this is the number n, ठीक है, मान लो कि नंबर n है, ठीक है, इसका बेस a है, ठीक है। so this can be represented as log of a to the power x, this can be said as equals to y, ठीक है। तो अगर मैं बेस को क्या करूं, so is the base here, this is the base, है ना, और y जो नंबर है that is going to be the exponent, so we are going to get the number x, ठीक है। so this is represented in a logarithmic form and here this is represented in a exponential form, ठीक है। the condition, only one condition, this always we are going to check this condition, this a should be greater than 0 and a should not be 1। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि a अगर ग्रेटर देन 0 नहीं, अगर a 0 है, ठीक है, तो अगर a अगर 0 है तो 0 पे पावर अगर कुछ भी अगर करोगे, है ना, तो व्हाट क्या होने वाला है, 0 पे पावर मैंने कुछ भी नंबर है, सपोज दिस इज ए 0, ठीक है, सपोज दिस इज a अगर 0 हो जाए, है ना, a अगर हमारा 0 हो जाए तो 0 पे पावर कुछ भी करोगे दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड नॉट गोइंग टू सॉल्व आवर पर्पस, ठीक है। और दूसरा अगर a अगर 1 हो, ठीक है, अगर a 1 भी हो, a पे पावर अगर 2 कर दो, a पे पावर 3 कर दो, ठीक है, 1 पे पावर 3 कर दो, ठीक है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमेशा 1 ही होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो नॉट गोइंग टू सर्व आवर पर्पस, ठीक है।
दो केसेस में अगर अगर बेस अगर जीरो और बेस अगर वन ना हो, एनी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर कुछ भी हो, है ना, एक वन से लेस भी हो सकता है, वन से जीरो के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, एंड एक से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, तो लॉग कैन बी डिफाइंड, ठीक है. सो इन दैट केस, है ना, वी कैन स्टार्ट द थिंग्स. एंड अगेन y शुड नॉट बी जीरो, एंड इफ y is जीरो तो वो नंबर और, है ना, गोइंग टू बी वन ओनली, करेक्ट. So if the conceptual definition of log is clear to you, so this can be thus we can say that any number log of number x to the base a is exponent y by which the base must be raised in the power to get x, ठीक है. तो अगर देखोगे तो डोमेन क्या हो सकता है, इसमें डोमेन क्या हो सकता है, तो डोमेन विल बी here x should be always greater than 0, ठीक है, x 0 होना चाहिए, x 0 से, है ना, हमेशा बड़ा होगा. so this is going to be, है ना, 0 to plus infinity, right. domain should be this. range क्या होगा, range will be r, है ना, any real positive number that can be, that is going to be the range of log, correct. so hope the definition of log is clear to you. We can move ahead, right. तो इसे में आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, इसको आगे, है ना, और समझने की कोशिश करते हैं. इसको लॉग को ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग से समझने की कोशिश करते हैं कि लॉग में हम ग्राफ कैसे यूज कर सकते हैं, लॉगरिथमिक टर्म को, एक्सपोनेंशियल टर्म्स को हम कैसे ग्राफ में एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंशियल टर्म एंड पॉलिनोमियल, है ना. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारे को, है ना. अगर मैं बात करूं a to the power x, so this is exponential, so this is exponential term, right. so this is exponential term, correct. this is exponential number, ठीक है. और अगर मैं बात करूं कि x to the power a, ठीक है, तो this is a algebraic number, ठीक है. right. so this is algebraic. here what here यहाँ पे क्या है बेस कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे बेस कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पावर कांस्टेंट है, ठीक है. so the difference, there is huge difference between exponential and polynomial number, ठीक है. so there is huge difference, so इसमें confusion नहीं होना चाहिए हमें कभी भी, ठीक है. so this is the polynomial, right. polynomial हमने already previous classes में learn किया है, ठीक है. so this is exponential, here base is constant, and here what, here यहाँ पे क्या होगा, पॉलिनोमियल में क्या होगा, सो द पावर इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, लेट्स लर्न द ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है. अब मान लो कि मैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल नंबर ले लिया, है ना, क्या लिया, है ना, कोई भी नंबर मैं यूज कर लेता हूँ, है ना. लेट्स टेक एग्जांपल, लेट टू द पावर x एक नंबर मैंने ले लिया है, ठीक है. अब ये एक्सपोनेंशियल नंबर है ना, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना हो, ठीक है. सो वी नो दिस इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल, ठीक है. तो अगर मुझे प्लॉटिंग करनी हो, है ना, सो दिस इज द y फंक्शन इज y इज इक्वल टू, है ना, सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू 2x, ठीक है. ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, ठीक है. और मैं अगर टेबुलर फॉर्म में अगर मैं इसे प्लॉट करूं, सो व्हाट दिस इज गोइंग टू बी, मैं अगर x के वैल्यू को अगर 0 पुट करूं तो y व्हाट इज y इज गोइंग टू बी 1, ठीक है. तो है ना, अगर मैं 1 पुट करूं सो दिस इज गोइंग टू बी 1, 2 पुट करूं दिस इज गोइंग टू बी 4, अगर 3 पुट करूं दिस इज गोइंग टू बी 8, है ना. अगर मैं 4 पुट करूं दिस इज गोइंग टू बी 16, ठीक है. सो समथिंग लाइक इस तरीके से ये मूव कर रहा है, ठीक है. माइनस पुट करूं, है ना, -1 मैंने पुट किया, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2, है ना. मैंने क्या किया, -2 पुट किया, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी 1/4, ठीक है. अगेन -3 पुट किया, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/8, ठीक है. अब इसे मैं प्लॉट करूँ, अगर ग्राफिकल फॉर्म में अगर मैं इसे प्लॉट करूँ तो ये किस तरीके से निकल के आने वाला है, ठीक है. तो ठीक है. सो इफ दिस इज -1 -2 -3 -4 नॉट विजुअल, है ना. चलो वाइट करते हैं, -3 -2 -1 एंड दिस इज 1 2 दिस इज 3 दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ऐसा कुछ है ना. और वाई पे मैं पुट करूँ, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5 दिस इज 6
सो ऑन, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर मैं देखोगे है ना, तो ये कैसा निकल के आएगा है ना, जीरो है, अगर एक्स इज जीरो तो वाई इज व्हाट, जीरो पे कितना आ रहा है, जीरो पे तो अगर x इज जीरो तो y इज गोइंग टू बी वन, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। x अगर वन है तो y कितना आ रहा है, y इज x इज वन है तो y यहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है। x अगर टू है तो दिस इज कमिंग हियर, ठीक, चार की जगह पे आ रहा है, ठीक है। x अगर थ्री है तो दिस इज समथिंग गोइंग टू हियर, एट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो और अगर x अगर माइनस वन है तो दिस इज कितना आ रहा है, ये माइनस वन पे दिस इज हाफ है ना, यहाँ पे कुछ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद 1/4 आ रहा है, उसके बाद कितना आ रहा है 1/8 आ रहा है, उसके बाद कितना आ रहा है 1/16 आएगा, ठीक है। आप देखोगे तो दिस इज ट्राइंग टू टच एक्स को, ये टच करने की कोशिश कर रहा है, 1 से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और समथिंग प्लस इंफिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट। तो दिस इज गोइंग टू टच एक्स एक्सिस एट इंफिनिटी, ठीक है। तो कुछ वर्टिकल एसिम्पटोट यहाँ पे बनाने की बात कर रहा है ना, वो सॉरी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बना रहा है ये, ठीक है। और अगर सेम टू सेम अगर नेगेटिव साइड में अगर मैं इसे अगर प्लॉट करूँ तो ये कुछ ना कुछ ऐसा बनाते हुए नजर आएगा, है ना, ये कुछ ना कुछ ऐसा बनाएगा, है ना। तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ, है ना, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू, दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ax। यहाँ पे क्या a इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है y इक्वल्स टू ax एंड हियर a इज व्हाट, a इज लेस देन 1, ठीक है, और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दिस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट के जो ग्राफ आते हैं कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। सिंस बोथ आर यू नो, मैं बोलूंगा तो बोथ आर मिरर इमेज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस लॉगरिथमिक फंक्शन बोथ आर मिरर इमेज काइंड ऑफ थिंग। तो अगर मैं बात करूं तो लॉग की जो ग्राफ आएगी, हमें लॉग की ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के निकलते हुए आएगी, ठीक है। लॉग की ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से बनते हुए नजर आएगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूँ, है ना, जो मिरर अगर ऑरिजिन से अगर क्रॉस कर रहा हो, है ना, तो दिस मिरर इज y इक्वल्स टू, अगर x की अगर मिरर लगा दूँ तो आप देखोगे, है ना, सो दिस ग्राफ, है ना, दिस एंड दिस, है ना, ये वाली ग्राफ, है ना, ये वाली लाइन एंड ये वाली जो कर्व है, बोथ आर गोइंग टू बी द सिमेट्रिकल टू ईच अदर, ठीक है। तो अगर ये अगर मैं मिरर अगर मैं लगाता हूँ, ठीक है, क्रॉसिंग विथ जीरो, तो दिस कर्व, है ना, एंड दिस कर्व गोइंग टू बी द मिरर इमेज टू ईच अदर, ठीक है। इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। और इस तरीके से फर्दर वी आर गोइंग टू सो मेनी, हम लोग बहुत सारी चीजें इस ग्राफ में से लर्न करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज द ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, है ना, फंक्शन, करेक्ट। तो अगर ये अगर क्लियर हो, है ना, अगर लॉग की चीजें अगर हमने समझ ली हो, ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस करते, कुछ नंबर्स, कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं एंड लेट्स लर्न मोर अबाउट द लॉग, ठीक है। तो वी हैव सम एग्जांपल्स, अब इन एग्जांपल्स को हम करते हैं और समझते हैं कि कैसे एग्जांपल्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉग, है ना, एंड लेट्स रिवाइज द, है ना, लेट्स स्पीड अप द लर्निंग आर फास्ट अबाउट द लॉग, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि लॉग बेस ऑफ 9 81, ठीक है। हमें इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन से पढ़ा, सो विल गो बाय डेफिनेशन, है ना। हमने क्या पढ़ा था, लॉग ऑफ, है ना, लॉग ऑफ बेस a, राइट, टू द नंबर x, लॉग ऑफ 81 टू द बेस a, ठीक है, हमने ये पढ़ा था इक्वल्स टू x। तो मैं क्या करूँगा, सो दिस द पावर, है ना, दिस a, सपोज दिस इज a, हमने क्या पढ़ा था, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। सो लॉग ऑफ a टू द पावर x इक्वल्स टू y। तो हमने क्या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा था, a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर y इक्वल्स टू x, ठीक है। सिमिलर बाय डेफिनेशन विल गो, है ना, मैं क्या करूँगा 9 टू द पावर x इक्वल्स टू 81 लिखूँगा एंड वी ऑल नो 81 कैन बी आल्सो रिटन एज 9 टू द पावर 2। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x विल बी 2, है ना। सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। सिमिलरली ऑल द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, है ना, वी ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, log of 4, ठीक है, टू द बेस 2, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज x, लेट्स कंसीडर दिस एज x, ठीक है। तो ये कैसे लिख सकते हैं, तो रूट 2 टू द पावर x इक्वल्स टू
4, ठीक है, ये ऐसा लिखाया जा सकता है, ठीक है। और अगर 4 को अगर √2 के फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे कर सकते हैं? सो 4 कैन बी रिटन एज ए 2 to the power 2, ठीक है। और 2 को अगर √2 के फॉर्म में लिखना हो हमें तो दिस कैन बी रिटन एज ए √2 the power 2 and to the power 2. So this will be what? √2 the power 4, ठीक है। So 2 and 2 both got multiplied, ठीक है। So what will be the value of x? X can be written as x will, value of x will be 4. So by this way we have solved the, है ना। तो हमने जो पहले जो रिवाइज किया था लॉ ऑफ इंडाइसेस, आई होप लॉ ऑफ इंडाइसेस की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें बहुत ही हेल्प कर रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे 2 into 2 किया, है ना। दिस वी ऑलरेडी a to the power m to the power n हमने ऑलरेडी पढ़ा था, रिवाइज किया जिस नाउ, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में हमें ये हेल्प करेगा, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, है ना। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस कैन बी आल्सो रिटन एज इफ दिस कंसीडर दिस इज x, सो 2√3 to the power x, ठीक है, कैन बी रिटन एज 1728, ठीक है। अब 728 को 1728 को अगर मैं आप फैक्टराइज करोगे तो समथिंग 2√3 के फॉर्म में वो कन्वर्ट होके आएगा, ठीक है। देन वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। So question, what is question number 6? Question number 6 we have log of 5 plus 2√6 and base क्या है √2 plus √3, ऐसा कुछ है, ठीक है। And again we will go by definition, है ना। So if this is x, so this to the power x can be written as this, ठीक है। something कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। Let's try to solve this question like this, है। अब मैंने क्या किया कि √2 plus √3 पर पावर x मैंने कर दिया एंड दिस कैन बी रिटन एज 5 plus 2√6, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, है ना, ये कैसे कन्वर्ट करूँ कि इस तरीके से कुछ आ जाए, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है कि दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज ए, है ना। अगर मैं √2 plus √3 का होल स्क्वायर करूँ तो कितना निकल के आएगा, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 plus 3 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, प्लस 2 into √2 into √3, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू 5 plus 2√6, ठीक है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ एक्चुअली इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। सो हियर दिस विल बी, है ना। सो दिस कैन बी अगेन सिंप्लीफाइड, दिस टर्म कैन बी रिटन एज ए लाइक दिस, है ना, √2 plus √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ x विल बी, हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ x कितना होगा, x कैन बी रिटन एज 2, ठीक है। वैल्यू ऑफ x विल बी 2। आई होप यू आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। और हम क्या करते हैं, कुछ ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 को ट्राई करते हैं ना, एंड विल ट्राई टू, लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट, है ना, देन विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो अगेन विल ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो वो करते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समथिंग कुछ हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत बेसिक हमने पढ़ाई किया है प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। सो लॉग ऑफ cot 50 इक्वल्स टू 10 बेस 40 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू x, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज 10 40 डिग्री टू द पावर x इक्वल्स टू cot 50 डिग्री, ठीक है। तो cot अगर 40 है तो cot 40 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10 π/2 minus 40 डिग्री, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। सो मीन्स अगर मैं बोलूँ तो दिस कैन बी रिटन एज, है ना, 10 40 डायरेक्टली मैं बोलता हूँ 10 40 भी से लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 10 40 डिग्री, ठीक है। तो लॉग cot 50 को हम 10 40 डिग्री भी लिख सकते हैं। सो दिस इज x इज गोइंग टू बी व्हाट, तो so here 10 can be also written as, है ना, cot 50 can be written as 10 of 40 degree, so x is going to be what, x is going to be 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। सो लेट्स टेक द क्वेश्चन नंबर 5। सो हियर log of 0.4, है ना,
रेकरिंग टू बेस इज 2.25 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वी ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व रेकरिंग नंबर, है ना। रेकरिंग नंबर को अगर मुझे नॉर्मल नंबर में, है ना, नेचुरल नंबर में अगर कन्वर्ट करना हो, ठीक है, फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना हो, डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, व्हाट लेट हम क्या करेंगे, लेट एक्स टू बी रिटर्न एज 0.44, है ना। इस तरीके से मैं लेट कंज्यूम कर लेता हूँ। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड, है ना, 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस कैन 10x कैन बी देयर, दिस विल बी 10x, है ना, बोथ साइड वी मल्टीप्लाई विद 10, ठीक है। और ये कैन बी रिटर्न एज 4.4, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज x इक्वल्स टू 0.4, ठीक है, ऐसा कुछ है। मैं क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी 9x इक्वल्स टू गोइंग टू बी 4, 9x इक्वल्स टू गोइंग टू बी 4, तो ये x इक्वल्स टू गोइंग टू बी 4/9, ठीक है। x तो ये क्या 4/9 आ गया, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। एंड हियर दिस इज दिस, ठीक है। तो वी कैन राइट लॉग ऑफ, है ना, 2 to the power इतना, है ना, एंड हियर इट इज 4/9, ठीक है। अगर मुझे 2.25 को अगर एक्सप्रेस करना हो, 2.25 को अगर एक्सप्रेस करना हो तो क्या कर सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी, है, ये 9 होगा और ये 4 होगा, जैसा कुछ भी होगा, ठीक है। तो बाय सिंप्लीफाइंग ये कितना हो रहा है, लॉग ऑफ पावर 9/4 टू दी बेस 9/4 तो नंबर क्या है 4/9, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ या माइनस में कन्वर्ट होते दिख रहा है, ठीक है। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, है ना, अगेन अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, अब मैं इस नंबर को लिखूँ तो दिस इज लॉग ऑफ 4/9, लॉग ऑफ 4/9/9/4 इक्वल्स टू, अगर मैं y मान लूँ, ठीक है, तो so this can be written as 9/4 to the power y equals to 4/9, ठीक है। तो दिस कैन ऑल्सो रिटर्न एज, है ना, -1, तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू -1 आएगा, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज गोइंग टू बी -1, पावर कितना आएगा, -1 आएगा। होप यू अंडरस्टैंड ऑल एवरीथिंग, है ना। तो मैं से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़ें, ठीक है। सो बाय दिस यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना, एंड वी कैन मूव अहेड, राइट। And let's do some another number, है ना, another concept, let's learn some another thing, है ना। चलो आगे बढ़ो, तो let's do some another question. So we have another question, है ना। अगर ये समझ में आ गया तो हम कुछ अलग क्वेश्चंस को करते हैं, अलग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अगर विजिबल नहीं हो तो आई राइट हियर, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव लॉग ऑफ बेस 5 to the log base 2 to the log base 3 to the log 520 512, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट के लॉग वाले क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बस डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हमें मूव करना है ना। एक बार हमने जो डेफिनेशन लर्न किया है, सो बाय दैट डेफिनेशन हमें प्रोसेस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, है ना, सबसे पहले मैं क्या करूँ, है ना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, है ना, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ कि 512 को कैसे लिख सकते हैं। तो 512 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो दैट कैन बी डन बाय व्हाट, सो 2, दिस इज 256, ठीक है। सो दिस 2 दिस इज 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज 8 128, दिस कैन बी रिटन एज 56, है ना, नॉट 56, this is 6 and this is for 64, right, and this can be written as 32 and this can be written as 16 and this can be written as 8, this can be written as 4 and this can be written as 2. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so 512 can be written as 2 raised to power 9, ठीक है। ये हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस मैंने अभी जस्ट बोला था कि डिवाइड करना था हमें। सो वी कैन राइट दिस टर्म एज 512 एज ए 512 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी कैन राइट 512 एज 2 to the power 9। तो मैं उस चीज़ को जस्ट वैसे लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना, 2 then log of base 3 then log of base 2 to the power 9, ठीक है। तो अगर वी नो, है ना, कि अगर पावर 9 है तो पावर 9 कैन बी, यू नो, दिस अगेन रिटर्न एज, है ना। ये मैं अभी जस्ट नाउ मैं वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज, है ना। तो बाय प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू, है ना, अब क्या करता हूँ मैं इसको x मान लूँगा, ठीक है। सो दिस इज 5 एंड दिस इज log 2, पहले वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस, है ना, दिस पार्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाली पार्ट हमारे पास है, सो दिस पार्ट log ऑफ 2 to the power 2 to the power 9 अगर है तो इसको मैंने माना कि x है, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power x इक्वल्स टू 2
2 to the power 9, ठीक है। तो x इज हाउ मच, x विल बी 9, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है log of 2 to the power 9 to the base 2 कैन बी रिटन एज ए 9, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, log of this is base 2 and this is log of base 3 to the power 9, डायरेक्टली दिस टर्म कैन बी रिटन एज ए 9, ठीक है। अब 9 हमारे पास है तो 9 अगेन कैन बी रिटन एज व्हाट, 9 कैन बी रिटन एज 2 to the power 2, ठीक है। तो इस ये जो अगेन टर्म है log of 5 and this is log of base 2 and log of 3 to the power 2, ठीक है। अगर अगेन है ना, मैं इस टर्म को फिर से सॉल्व करता हूँ, ये वाली जो टर्म है हमारे पास, ये टर्म मैं फिर से सॉल्व करता हूँ एंड दिस टर्म कैन बी सॉल्व log of 3 to the power 2 to the base 3 कैन बी रिटन एज y। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 to the power y को लिख सकता हूँ 3 to the power 2। सो y का वैल्यू कितना आने वाला है, y का वैल्यू गोइंग टू बी 2, ठीक है। तो इस टर्म को मैं डायरेक्टली कितना लिख सकता हूँ, मैं इक्वल्स टू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगेन इस टर्म को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट टर्म को। सो दिस इज द log base 5, so log 2 and this is 2, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया, डायरेक्टली इतना हो गया। नाउ log of 2 to the base 2 कितना हो सकता है, सो अगेन वी विल ट्राई टू सॉल्व log of 2 to the base 2, so this if this is the x, ठीक है। तो 2 to the power x can be written as 2 means 2 to the power 1, ठीक है। x will be how much, x will be 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया है ना, सो दिस टर्म कैन बी रिटन एज 1, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा है ना, अब मैं क्या करता हूँ ना, इस टर्म को, ये सारे पार्ट को, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी यूज कर लिया, सो विल रिमूव दिस, है ना। तो हमने क्या करना है, हमने क्या किया, log of base 5 and this term can be written as 1, ठीक है। अब इस टर्म को मैं सॉल्व करना, बाय मान लो कि पूरी का पूरी टर्म x है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 to the power x इक्वल्स टू 1। और 5 1 कब हो सकता है, कितना x की पावर कितना होगा कि 5 1 हो सकता है, ठीक है। ओनली वन कंडीशन, एक ही कंडीशन में 5 रेज़ टू पावर 1 हो सकता है, कब, जबकि x की वैल्यू कितनी हो, x की वैल्यू 0 हो, ठीक है। x की वैल्यू 0 अगर होगी तो दिस कैन बी 1, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन तो बहुत बड़ी दिखती है, हमने जब सिर्फ डेफिनेशन को यूज किया है ना, क्या किया हमने, सिर्फ डेफिनेशन को हर एक पार्ट में डेफिनेशन हमने लगाए, यूज किए एंड वी गॉट द आंसर। सो वैल्यू ऑफ दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 0, ठीक है। होप यू लर्न दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ डेफिनेशंस को यूज किया, बाय यूजिंग डेफिनेशन वी ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। जस्ट होल्ड, मैं पानी पी लूं, ठीक है। नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को सिमिलर में बाय द यूज ऑफ डेफिनेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 आल्सो, ठीक है। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि log ऑफ, कुछ तो बहुत बड़ा है ना, हाफ 1/3 इज बेस, है ना, और कुछ तो स्क्वायर रूट 4th रूट में कुछ तो पावर है 720√9 एंड अगेन कुछ तो 3 के क्यूब रूट में है, क्यूब रूट में क्या है, सो 9 to the power -1 एंड और क्या है 27 to the power into 27 to the power 27 to the power, this is 27 and here this is a 27 to the power -4/3। तो क्वेश्चन देखोगे तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन काइंड ऑफ फील होता है, बट वी आर गोइंग टू बी स्टिक विद द डेफिनेशन, है ना, वी आर गोइंग विद द डेफिनेशन ओनली, ठीक है। तो विद द डेफिनेशन वी ट्राई टू गो, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जस्ट अंदर की जो टर्म है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन विल गो बाय डेफिनेशन के थ्रू चलेंगे। तो लेट्स सिंप्लीफाई द टर्म्स इनसाइड द 4th रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो ऐसा कुछ है कि दिस इज द 4, ठीक है, 4 रूट में दिस इज 729, ठीक है, डॉट, सो दिस इज क्यूब रूट ना, अंडर रूट अगेन क्यूब रूट, सो दिस इज द -9 to the power -1 into and 27 can be written as a, है ना, 3 to the power 3 into -4/3। तो यहाँ पे कुछ तो सॉल्व होते हुए दिख रहा है ना, सो दिस बिकम्स 3 to the power -4, so this can again be written as a, है ना, this can again be written as 729 into 3 cube root 3, so this is 3 to the power, this can be written as a 3 square, so this is going to be -2 into this is going to be
कुछ 3 टू द पावर माइनस 6 होते हुए तो दिख रहा है ये, राइट। तो दिस कैन अगेन बी एक्सप्रेस एज ए 729 इंटू क्या हो रहा है 6 टू द पावर माइनस 6 ऐसा कुछ होते हुए दिख रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय 3 है ना। सो क्यूब रूट हमने हटाया तो दिस इज डिवाइड बाय 3 ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। सो दिस इज द 4 है ना, अगेन कैन बी रिटन एज ए, सो दिस इज द -2, ठीक है, दिस इज 729 इंटू 6 टू द पावर, सॉरी दिस इज 3 ना, हाँ 3 टू द पावर, सॉरी दिस इज 3 नॉट, तो दिस इज 3, ठीक है। सो दिस इज 3 टू द पावर माइनस, ठीक है, -6 सो दिस इज 3 टू द पावर -2, ठीक है। अब इस टर्म को एक बार अपन यूज करते हैं, 729 को फैक्टराइज करते हैं, कुछ ऐसा 3 के टर्म में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, है ना। तो लेट्स सिंप्लीफाई, है ना। मैं क्या करता हूँ, 729 को कैसे लिख सकते हैं, 729 को अगर फैक्टराइज करना हो तो दिस कैन बी फैक्टराइज एज ए, है ना, 9 से कर दो, 9 8 राइट, एंड दिस इज 1, ठीक है, एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 2, ठीक है, 9 9 जा, राइट। सो दिस इज 9 अगेन, ठीक है। तो दिस इज 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, देन 3 टू द पावर 6, दिस इज गोइंग टू बी 3 टू द पावर 6, ठीक है। तो ये इस टर्म को और अपन लिख सकते हैं कि दिस इज 3 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर -2, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ दिख रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी 3 टू द पावर 4 रूट में, दिस इज टू द पावर मैंने 6 और माइनस को प्लस किया, दिस इज गोइंग 4, तो दिस क्या निकल के आ रहा है, ये 3 टू द पावर 4 टू द पावर 4 ऐसा कुछ बनते हुए दिख रहा है। तो ये एक्चुअली सिंप्लीफाई करके 3 निकल के आ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या निकल के आ रहा है, log ऑफ 3 टू द बेस 1/3, ये कुछ ऐसा बनते हुए दिख रहा है, ये पूरा टर्म सिंप्लीफाई होकर 3 बन के आएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बना। नाउ लेट्स कंसीडर दिस इज एज x, ठीक है। तो हमें क्या इंडाइसिस अगर आता हो तो हमने उस इंडाइसिस से ओनली इसको सॉल्व किया है, ठीक है, एंड वी गेट द वैल्यू 3, ठीक है। ये अगर x है तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1/3 टू द पावर x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 3 टू द पावर -x इक्वल्स टू 3, सो द वैल्यू ऑफ x विल बी हाउ मच, द वैल्यू ऑफ x विल बी -1। तो मैंने इस इतने बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, है ना। क्या किया मैंने, सिर्फ बाय डेफिनेशंस को यूज किया और कुछ भी यूज किया और कुछ नहीं, लॉ ऑफ इंडाइसिस हमने जो लर्न किया था बस उसको रिवाइज किया एंड वी गेट द वैल्यू, ठीक है। होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो लेट्स मूव टू, है ना, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, राइट। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, राइट। नाउ व्हाट वी हैव द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ बड़ा सा तो दिख रहा है एंड वी आर गोइंग टू यूज ओनली डेफिनेशन, ठीक है। हमें जो डेफिनेशन हमने लर्न किया है एंड वी आर गोइंग टू यूज ओनली दैट, ठीक है। ये क्या है, log ऑफ 2 टू द पावर, अगेन log ऑफ 2 टू द ब्रैकेट log ऑफ 3 टू द x, है ना। ये इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ बेस 2 log ऑफ, this is base 2 base 3 and this is not visible to me, है ना। this is log of base 2 to the power y, this is log 2 to the power y is equals to 0। ऐसा तो है, दो टर्म है, दोनों टर्म इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो पहले एक पहला टर्म सॉल्व करते हैं, फिर वी ट्राई टू सॉल्व दूसरा टर्म, है ना, इसको फिर इक्वेट करके कोशिश करेंगे व्हाट वी कैन डू, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सो वी हैव द log 2 and log, तो देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस y, ठीक है। x माइनस y का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले x फाइंड करते हैं, देन y फाइंड करते हैं, देन वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x माइनस y, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये है, सो लेट्स डू फर्स्ट टर्म, दिस टर्म फर्स्ट, पहले ये वाला टर्म हम पुट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज log 2, देन ब्रैकेट में log 2 अगेन log ऑफ 2 टू द पावर x बेस 3 x इक्वल्स टू 0, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हमें इस टर्म को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूं, सो दिस कैन बी रिटन एज ए, है ना, log ऑफ, अगर 3 को मैं इस तरफ ले जाऊं, है ना, सो 3 टू द पावर, ये 2 से भी कर सकता हूं, है ना। 2 को मैं अगर इस तरफ ले जाऊं, 2 टू द पावर 0 करूँ, दिस इज गोइंग टू बी 1, है ना, इसका वैल्यू 1 आने वाला है और 2 का वैल्यू फिर करता हूँ, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, है ना, ये एक टर्म है, इसको ब्रैकेट में डाल लो, है ना, ये पहला लॉग है, बेस 2 है एंड दिस इज गोइंग टू बी n, समथिंग n है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, so this log of 2
ये 2 हियर आर गोइंग टू कम है ना, दिस साइड राइट साइड आने वाला है, ठीक है। तो log ऑफ 2 है ना एंड log ऑफ बेस 3 टू द पावर x कैन बी रिटर्न एज ए 2 टू द पावर 0 है ना। इस 2 को मैंने राइट साइड में ले आया है ना, ये एक नंबर है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। अब हमारे पास ये एक नंबर n है एंड इसका बेस 2 है, ठीक है। तो हम इसको अगेन दिस गोइंग टू प्रोसेस बाय द सेम वे, ठीक है। अगेन log ऑफ 3 टू द बेस 3 टू द पावर x कैन बी रिटर्न एज 2 टू द पावर 1, तो दिस इज 2, ठीक है। अब हमारे पास ये कुछ x की वैल्यू निकल के आ रही है ना। सो द x कैन बी रिटर्न एज 3 टू द पावर 2, सो दिस इज 9। x की वैल्यू हमारे पास कुछ 9 निकल के आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया है ना। मैंने क्या किया, ये जो 3 टर्म्स के जो लॉग हैं, तो 2 टर्म को मैंने नंबर मान लिया है ना, और बेस को मैंने फिर क्या किया, 0 से इक्वेट किया, ठीक है। तो 2 टू द पावर 0 1 दैट कम्स टू 1 है ना। अब मैंने क्या किया, थर्ड टर्म है उसको मैंने एक नंबर मान लिया, ठीक है। तो ये बेस 2 ये जो लॉग का बेस 2 है, दिस कम्स टू द राइट साइड, और 2 टू द पावर 1 हो गया, तो दिस कम्स टू 1। अब तीसरा टर्म अलोन है कि log ऑफ x टू द बेस 3, इसको क्या किया हमने 2 से इक्वेट किया, तो 3 टू द पावर 3 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 9, ठीक है। LHS की वैल्यू हमने निकाल लिया, कुछ रही है राइट साइड वाली वैल्यू को हम निकालते हैं, राइट। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, करेक्ट। अब अपन क्या करते हैं, सेम वे से इसको अपन क्या करते हैं, इसको n मान लेते हैं, ठीक है। हियर अगेन तो दिस हियर log ऑफ बेस 3 देन log 2 to the power y can be written as a 2 to the power 0, so this becomes 1, right। So again ये इसको मैं क्या करता हूँ, नंबर मान लेता हूँ, ठीक है। तो this log of 2 of y can be written as a, है ना, this is 1, 3 to the power 1, so this can be written as a 3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, y कैसे होगा, y can be written as a 2 to the power 3, right, so this will be 8। तो y की वैल्यू हमें कितना निकल के आ रहा है, y की वैल्यू हमें 8 निकल के आ रहा है, ठीक है। So x we have 9 and y we have 8, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो x minus y तो निकालना है, तो this is the 9 and this is the 8, so value of this equation is going to be 1, है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा ना, कितना इंटरेस्टिंग है ना। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। हमें एक बार अगर डेफिनेशन अगर क्लियर हो, तो बाय डेफिनेशन वी कैन डू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, एंड लेट्स डू सम अनदर टॉपिक, राइट, है ना। अगर ये अगर क्लियर हो, है ना, तो बाय दिस वे, है ना, वी हैव सम अनदर कॉन्सेप्ट, है ना, दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्न इन नेक्स्ट क्लास, है ना, सो दैट वी कैन नो अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपर्ली, राइट। सो ऑलरेडी मैंने इसी में बनाया था, लेकिन ऑलरेडी बहुत बड़ी क्लासेस हो गई। सो प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू लर्न इन सेपरेट क्लास, ठीक है, क्योंकि अगर सेम क्लास में करूँ तो दैट इज गोइंग टू बी बिग, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वी आर गोइंग टू लर्न दैट ऑल कॉन्सेप्ट इन सेपरेट क्लास, ठीक है। अगर ये अगर कॉन्सेप्ट अगर डेफिनेशन अगर आपको सही लगा हो, है ना, तो लेट्स लाइक द वीडियो, लेट्स लाइक द क्लास, है ना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, सो दैट, है ना, आपको कंटिन्यूस सारे अपडेट्स मिलते रहे बार बार, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, है ना। प्लीज लाइक, share and subscribe the channel. Thank you.